GMS is headed by Sri Binod Dutt. Then comes to our vision. Our vision is to impact quality education on a continuous basis in an environment of teamwork, leadership, expertise, and innovation through value added education. Then comes to our mission to mold our students into good citizen and sound professional with character and integrity, to create environment and facility for achieving the above, to blend well-established traditional practices with modern teaching methodology through a judicious mix of Gurukul system and state-of-the-art learning technologies. Then comes to our advisory board. Our advisory board consists of 8 members: Sri Binod Kumar Dutt, President GMS, Sri P.K. Datta, Sri Jogesh Mehta, Sri Rajan Chibar. Our directors are Dr. Ratan Kumar Datta, Secretary General GMS, Lieutenant Colonel L.R. Baid, Sri Ashok Chibar, Sri B.L. Chibar. Then Merit Administrative Management. Merit is headed by our director Dr. Ratan Kumar Datta and our principal Miss Meena Datta. Then comes to our infrastructure. Mohyal Educational Research Institute of Technology is located in a four-story building on a 0.5-acre plot of land in the prestigious Serena Kutab Institutional Area, New Delhi. We have five fully functional computer labs as well as two world-class online testing labs where we are conducting different online international examination like AWS, Microsoft, TOEFL, and GRE. We have air-conditioned classroom as well as the LCD projector, well-stocked library. We have also Microsoft IT Academy. We got all the Microsoft license software through the Microsoft Academy. We have 24 hours power backup facility as well as high-speed internet connectivity. Then comes to courses conducted at Merit. We are conducting IGNOU courses like BCA, Bachelor in Computer Application, MCA, Master in Computer Application, PGCGI, Postgraduate Certificate in Geoinformatics, PGDST, Postgraduate Diploma in Applied Statistics, PGDIS, Postgraduate Diploma in Information Security, and MSCIS, Master of Science in Information Technology, CCITSK Certificate in Communication and IT Skill, then PGDGI, Postgraduate Certificate in Geoinformatics, then CIT Certificate in Information Technology. Then other courses conducted at Merit, we are also approved from the NCVT, National Council for Vocational Training, under the Ministry of Skill Development. We are running two trade, that is one is COPA, Computer Operator Programming Assistant, and another trade is DBSA, Database System Assistant. And we are also running some short-term courses like C, C++, Java, Computer Basic, Merit Certified Hardware and Networking Professional, Big Data, Machine Learning, Cloud Computing, IoT, and we are also conducting international examination like TOEFL, GRE, and PSI Testing Center. FRM exam we are conducting, Financial Risk Management exam. Then these are the important dates to remember. Submission of online examination form for the term and examination December 2025 up to 20th October 2025, rupees 200 for theory subject and rupees 300 for practical subject. From 21st October 2025 to 26th October 2025, rupees 300 for theory subject and 300 for practical subject with late fee of rupees 1100. Then last date of submission of assignment for December 2025 term and examination is 30th October 2025. Then thank you. Now I request our director sir, Dr. Ratan Kumar Datta sir, to address the learners. Sir. Thank you, Tushar. Because I think the students are still coming now. It is 2:21.
when you started, it was 190 or something. So I would like a few minutes to talk very simply, not talking of especially BCA Pro, but I would like to really wait because now it is 2:23. Should I Okay. wait? Should I wait? I'll explain about our website and Yes, classes schedule that's of better. classes. That's better. Okay, sir. Here you can download your counseling schedule. Just type merit.ac.in, then select classes schedule, right? You have to select BCA new program, then view schedule. Here you can download your schedule, BCA first semester counseling schedule. Then you can download your batch list, then assignment questions. You have total number of 5 paper. First one BEVA 181, it is environmental studies. Then BEGLA 136, it is English course. Then BCS 111 PC software theory. Then BCSL 13, it is a practical lab paper. Then BCS 12 is basic math. Total number of 5 subject. You have to complete all the assignment before 30th October 2025. After completion of your assignment, you have to submit the same at Merit website, that is merit.ac.in. Then click on assignment and general information. Then click on assignment submission link for term and examination December 2025. Just click on that. Then you have to fill up this Google form and you have to then select your program code as well as study center. Study center is 07162P. Then just select your program code BCA new. This is BCA new. Then you have to select the course code. Then you have to click submit. Maximum file size will be 10 MB. Maximum file size will be 10 MB, not more than that, right? You can download your counseling schedule from here. It is already given on the website. You just click on counseling study schedule. Then just check your name and batch list, right? You can download batch list from here. This is the batch list. It will take some time to download the PDF. Now it is open. Just check your theory batch. BN means BCA new. 1 means first semester, first batch. This is practical batch code and this is theory batch code. Just find out your name and enrollment number here. Then check your theory batch code and practical batch code. BNT meaning BCA new theory. And BN means BCA new practical. Practical first semester, first batch, right? Then you have to check the schedule from here. Your counseling session will be starting from 18th October 2025. Right? Now, sir, you can address the learners. Okay. I have explained. All right. Okay. Okay. Thank you, Mr. Tushar. I thank Dr. Laskar, who is the regional director, RC1, and deputy directors, Dr. Rahman and Dr. Hussain. They are going to talk later, and I hope Madam Meena Datta will give the vote of thanks. I welcome you all for the brilliant decision you have taken to join BCA program.
I tell you, I was the person who was the chairman of the board of the IGNOU, who took a decision that IGNOU can start BCA MCA program. I never thought so many students will be there, because I find 240 students are already linked up, and I am told there are about 600 students which are registered to our office. So, but see, this program of IGNOU is entirely different than what you have learned in 10+2 in your school. It's not a regular classes like this. It is a Saturday, Sunday classes, maybe some other days also may be there, that you have to be very carefully asking, reading and asking questions, because you may be working somewhere. You have to be very much concerned about what subject you are learning. For example, you are learning mathematics. You first read the mathematics lecture, what is being said in the counselor, and ask questions. Earmark, just like novel, you read the book and mark read which portion you don't know, and ask that question from the counselor. Counselor will answer that question and you will feel very happy and all that. Now, I find those students who are regular in theory, because theory में यहाँ IGNOU में restriction नहीं है, but I would say theory is as important as practical. Although आपको एग्जाम देने में थ्योरी में कोई क्लास भी ना अटेंड करो, इट्स ओके, बट नो, आई वुड नॉट लाइक दैट. You should attend all the classes very thoroughly, so that then you become expert in the practical. Because if you don't know the theory, how will you learn the practical? So that's important. And now I would also like you visit more often. Let us say on 13th, most of you come here, and we would like to open up, discuss. If you have any questions, because you are new to the IGNOU study center, so you will know how it is being groomed into you, so that you are able to learn the lessons properly. And that's where you should be able to come, and please come on 13th, and let us talk to each other, so that we know what are your questions, what are your problems, and how will you grow, so that you become entrepreneur and become the good software engineer and become expert like this. Now you see, you know, Darshan Pichale, all these people, Christian, all these people, IBM and Google and Microsoft, all people are born in India, like you, like us. So they are, because when I went to USA long time back, I was known as a snake charmer. But when I went in 80s and 90s, I was known as a programmer, known as software engineer. Now when you go to there, you will be known as software engineer and welcome. At the moment there are some problems, but there you will welcome. Okay, all these things are important. So you should be able to do your coursework very clearly. I think Mr. Tushar has already given you all the coursework, which is there. 5 papers are there. Assignment you have to finish, although you are joining. Today is 12th, 10th, and you have only 21 days left for putting your assignment on day, because you should send that assignment quickly. So that's important. And basically, bete, you have to study. You have to study, and the books are there, email. There are books are there on the website. Look up at that, because even if you don't get book, you can get it on the from direct website. You can download the book and read it. That's again, it's important thing, because you just read the lesson which is being taught in the class. Before that, you should read and mark the questions which you have. That's important. Then this system is entirely different than your school and college arrangement. This system is open system, but open entirely different manner, so that you are able to learn yourself and by interacting with the faculty, with the counselors and all that. So you should be able to do it so well
so that you are able to achieve the goal of becoming a software engineer. Today, you have a lot of software engineers who have done MCA and PhD from IGNOU, because they are doing extremely well. They are entrepreneurs, they are having their own company, they are a big company there and all that, so they can be wonderful thing which you can do it and all that. So that type of thing you should be able to do it. So I'll be very happy to meet you on 13th, answer your questions, your doubts and all that, so that we are able to understand fully what IGNOU is. I find our three senior people from RC will be talking about IGNOU, but I would like to have even further your discussion on 13th with you, so that I can talk to you very clearly, because you are the first entrance to the IGNOU course, so that you should be able to do it so well. So that's important. Okay. With this, I thank you. I wish all the best for you, so that you are able to do an extremely well in your BCA, and if later you do MCA and that type of thing, you should be able to do extremely well. All course, mathematics, English, everything you should be able to do well if you study carefully. Even if you study 4 days a week, that's more than enough. That's all. Thank you very much. All the best. Okay, thank you, sir, for addressing the learners. Now I request Dr. Rahman, sir, to address the learners. Hello, good afternoon to all of you, and welcome to this induction program for BCA learners through this Merit Study Center 07162. आप लोगों ने अभी प्रेजेंटेशन देखा होगा, मेरिट वाले या जो हमारे सर थे तुषार जी, उन्होंने बताया आपको कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है, किस लिंक पे जाना है, ये बताया। लेकिन आपके बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जो इग्नू से पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ में, संक्षेप में आपको थोड़ा परिचय करा दूं इग्नू का। इग्नू जो है एक पार्लियामेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू एक यूनिवर्सिटी है, और इसके जो रीजनल सेंटर हैं 56 प्लस 57 रीजनल सेंटर हैं, और कुछ 11 जो है रिकॉग्नाइज रीजनल सेंटर है। ये सारे रिकॉग्नाइज रीजनल सेंटर मिलके आपका सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा आपके स्टडी सेंटर हैं। जो स्टडी सेंटर जिसमें मेरिट भी एक स्टडी सेंटर है, वो मेरिट स्टडी सेंटर आपको सारी एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ है वो कराता है, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो अदर लैब कोर्सेज या कुछ भी हो। तो जो आपका माध्यम है, आपका जो फोकल पॉइंट है, वो आपका स्टडी सेंटर है, ये मेरिट है। मेरिट के बारे में थोड़ा सा मैं भी अर्ज कर दूं। तुषार जी ने आपको सारी विस्तार से बताया कि मेरिट क्या करता है, इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, ये कैसे एजुकेशन में जो है अपना योगदान कर रहा है, और अलग जो है फील्ड में क्या कर रहा है। लेकिन मैं इग्नू के हैसियत से आपको ये बता दूं कि ये हमारे जो स्टडी सेंटर्स बहुत सारे हैं, BCA MCA के लिए भी हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम के लिए है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टडी सेंटर इस हैसियत से है कि स्टूडेंट के कंसर्न को, उनके ग्रीवेंसेस को, उनके इश्यूज को ये लोग बहुत अच्छे से टेकअप करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व भी है, और ये कहते हुए बड़े कोई यार की बात नहीं लगती कि हमारे जो लर्नर्स हैं जो इस स्टडी सेंटर के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ेंगे, आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होगी, आपकी जो स्टडी होगी वो बहुत ही फुलफिल होगी। 2-3 बातें और आपको अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग ODL में हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में हैं, कुछ हो सकता है ऑनलाइन भी लिए हों। आपको थोड़ा सा जो है एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लर्निंग सीखने आप आए हैं और आपको अपनी पेस पे पढ़ना है। ये स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर ये आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा, ये आपकी हेल्प करेगा, ये आपको फैसिलिटेट करेगा। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किस क्षेत्र सत्र के छात्र हैं, जनवरी में या जुलाई के। अभी तो ये जुलाई का सेशन है, आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना है,
आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब सबमिट करना है, आपको एग्जाम फॉर्म कब सबमिट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इग्नू की वेबसाइट के द्वारा, हमारी रीजनल सेंटर जो क्षेत्रीय केंद्र है उनकी वेबसाइट द्वारा, इवन स्टडी सेंटर जो हमारा ये मेरिट है उसकी वेबसाइट के थ्रू आपको मिलती रहेंगी, आप उस पर देखिएगा। कभी भी अदर जो वेबसाइट हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक हो या कहीं और हो, उस माध्यम से आप कहीं उस इनका जानकारी पे या इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं रखिएगा। जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी अथेंटिसिटी क्या है वो चेक करना है। तो आपको ये 3 जो रीजनल सेंटर, इग्नू मेन वेबसाइट प्लस मेरिट की, इसकी जो वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है उस पर ही डिपेंड रहिए, उस पर भरोसा कीजिए। दूसरी चीज ये है कि देखिए आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप लगाएंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। और ये तो जैसा हमारे डायरेक्टर साहब, मेरिट के डायरेक्टर ने कहा कि लर्निंग एक लॉन्ग प्रोसेस है और कंप्यूटर की दुनिया बड़ी वसी है। अब कंप्यूटर में रोज आना कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो आप थोड़ा अटेंटिव रहिए, एक्टिव रहिए, सीखिए, ताकि जो टीचर हैं, जो टीचर क्लासरूम में आ रहे हैं, वो क्लासरूम में आपको, आप क्वेश्चन उनसे करेंगे तो क्वेश्चन के बदले आपको कुछ जानकारी भी होगी, टीचर भी थोड़ा पढ़ करके आएगा। सर ने इशारा किया था, तो एक अच्छा स्टूडेंट वो भी है जो टीचर को मजबूर करे कि वो थोड़ा पढ़ करके आए। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग टीचर को मजबूर करेंगे कि वो थोड़ा ज़्यादा आपके सब्जेक्ट पे, आपके चैप्टर पे, आपके यूनिट पे थोड़ा वेल अटेंटिव होकर तैयार होकर के आएगा। बिल्कुल सर। दूसरी बात ये है कि अगर कोई दिक्कत हो रही है, कहीं कोई समस्या है, क्योंकि देखिए बीसीए का है, तो मैं इसीलिए जो है, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारे फ्रेशर्स भी होंगे, तो मैं उस लेवल पे ही बात कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप अपना जो स्टडी सेंटर है, उस स्टडी सेंटर के माध्यम से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो किसी वजह से, तो फिर आपका रीजनल सेंटर का दरवाज़ा खुला है। और आपको पता होना चाहिए कि रीजनल सेंटर मंडे टू फ्राइडे खुलता है। सैटरडे संडे स्टूडेंट की ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, या तो वो मेल कर दे तो फिर देख सकते हैं, लेकिन फिजिकली आना हो तो मंडे टू फ्राइडे होगा। लेकिन मेरिट आपका जो स्टडी सेंटर है, इस पे आप सैटरडे संडे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्होंने लिंक भी बना रखा है। तीसरी और आखिरी बात, देखिए मेहनत से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, अपने विजन मिशन को क्लियर करिए, और इग्नू की जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो आपको स्पेस मिला है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हो सकते हैं जो इसके साथ कुछ और तैयारी कर रहे होंगे, कुछ और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या कहीं कुछ और काम कर रहे होंगे, या कुछ कहीं और इंगेज होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे होंगे। तो आप जो जिस मकसद से, जिस टारगेट को लेकर के आप यहाँ इग्नू में आए हैं, उस टारगेट को पूरा करने की भरपूर कोशिश कीजिए। That is all from my side, and best wishes again. Thank you, and over to Tushar ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you for motivating the learners. Now I request Regional Director, sir, M.A. Laskar, sir, Dr. M.A. Laskar, sir, to address the learners. Sir. थैंक यू। सबसे पहले मेरा बड़ा धन्यवाद है दत्ता सर के लिए। ही इज ए बिग मोटिवेटिंग फॉर द स्टूडेंट आई हैव सीन। और इतना एज होने के बाद भी ही इज स्टिल टेकिंग टाइम एंड हैव इंटरेस्ट इन गाइडिंग द स्टूडेंट, ताकि उनको अच्छा हो, फ्यूचर में अच्छा करे। तो मेरे से एक अच्छा, सबसे बड़ा थैंक्स उनको मैं भेजना चाह रहा हूँ। My thanks to him, and I have seen so many students have joined here. It is we are very glad to see so many students here. And you see, IGNOU is a big system है, बड़ा बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है इसको। इनका जो एक रेपुटेशन सब जगह में है, और इनका प्रोग्राम का वैल्यू सब यूनिवर्सिटी जैसे सबका बराबर जैसे है, रेगुलर जैसे यूनिवर्सिटी जैसे बराबर है। उसमें कोई इशू नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कोई
शौक नहीं होना चाहिए। आपको ये बेसिकली पढ़ना है अच्छा से। आप एक बड़ा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है, और आपका स्टडी सेंटर जो ये दत्त सर का जो सेंटर है, एक बहुत बड़ा अच्छा सेंटर है आपके लिए। आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं, जनरल स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, सपोर्टिव है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अच्छा से पढ़ाई करना है। ये जो BCA एक प्रोग्राम है जो बेसिकली एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है, तो उसी हिसाब से आपको उसमें बहुत सारी टाइम देना पड़ेगा आपको बेसिकली। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा से आपका प्रोग्रेस होगा, आपका ग्रोथ होगा, करियर में भी ग्रोथ होगा, सब कुछ होगा आपका। इसमें इम्पोर्टेंस है आपको हर चीज़ का आपको ध्यान से और टाइम देके आपको पढ़ना जरूरी है। और सबसे पहले आप ऐसा करिए, आपका जो प्रोग्राम गाइड बुक है उसको एक बार अच्छे से आप लोग देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि उसमें प्रोग्राम का पूरा डिटेल उसमें सब कुछ मेंशन किया है। तो प्रोग्राम गाइड बुक ऑलरेडी तुषार जी ने आपका वेबसाइट में दिखाया, उसमें प्रोग्राम गाइड बुक भी अवेलेबल है। आपका पास मटेरियल अभी नहीं आया तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पहले उसको देख सकते हैं। उसी में सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इग्नू कैसा है क्या नहीं है। और दूसरा बात, बाकी जो हमारा ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल है और जो प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल है, उसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करें। भले ही थ्योरी का काउंसलिंग कंपलसरी ना हो, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, सजेशन है, क्योंकि आपने ये BCA एक फाउंडेशन ये कंप्यूटर फील्ड में आप शुरू किया BCA। जो लोग MCA ठीक है वो मान सकते हो, लेकिन आप लोग BCA में ज्वाइन किया है तो इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ थ्योरी में आपको सीखना जरूरी है। और उसी के लिए कोई टीचर है, फैकल्टी है, वो आपका अच्छे से मदद कर पाएगा। उसी के लिए आपको जो बुक है, बुक को आप पहले पढ़ लीजिए, और आपका कोई भी डाउट है, मन में कुछ परेशानी है, आप आके पूछिए। और एक बात ध्यान में रखिए, आपको ये जो प्रोग्राम है, इसमें प्रोग्राम में आप जितना आपको सीखेंगे इतना आपको फ़ायदा होंगे। इन द सेंस दैट ये आजकल जो प्रोग्रामिंग जो भी है, प्रोग्रामिंग का चीज़ है, जिसे आपको नया नया कीवर्ड भी सीखना पड़ता है। ये आजकल IT फील्ड में बहुत सारे चेंज भी आते रहते हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपडेट करना रहना पड़ता है एक्चुअली, वो ज़रूरी है। और उसी हिसाब से आप अपडेट करेंगे तो आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा से दिखाएंगे तो आपको हर फील्ड में आपको नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर का बहुत अलग अलग फील्ड में बहुत सारी चीज़ आजकल आ गया है, तो उसी हिसाब से आप परफॉर्म कर पाएंगे तो आपको बहुत फ्यूचर में ये प्रोस्पेक्ट अच्छा होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और सर्टिफिकेट का कोई वैलिडिटी का कोई मतलब ही नहीं है उसमें, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स आपको प्रोग्रामिंग में आजकल हुई जाती है, एक कीवर्ड्स का मीनिंग क्या, उसके साथ रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है, वो लॉजिक अप्लाई करने के लिए आपको मैथमेटिकल फाउंडेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से आपको देखना है, मैथमेटिक्स का जो पेपर्स है उसको अच्छे से करना है। बहुत बच्चा ऐसा करते हैं मैथमेटिक्स को वो टफ लगता है, वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, बाद में उसी में दिक्कत आती है। बेसिकली वो मैथमेटिक्स का जो पेपर है, और इनफैक्ट इंग्लिश का भी जो पेपर है यहाँ, वो दीज आर फाउंडेशन टाइप एक्चुअली पेपर, इम्पोर्टेंट पेपर है। और इसमें आपको फायदा है, बहुत अच्छा से होगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग कोड आपको जब करते हैं उसमें मैथमेटिकल वो आता है। एक तो मैथमेटिकल जो, दूसरा वो लैंग्वेज में कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें सीक्वेंसिंग पैटर्न और सिमेंटिक्स और जो भी है सिमेंटिक्स और सिंटेक्स, ये चीज़ स्ट्रक्चर करना आपको आना चाहिए अच्छा से। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखिए। लॉजिक में अच्छे से ध्यान रखिए, लॉजिक कैसा बनते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक जो फाउंडेशन में उसमें, और जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, उसके लिए आपको, तो आप जब बुक पढ़ेंगे बहुत चीज़ पता चल जाएगा आसानी से। आपका कोई कुछ मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है या कंप्यूटर का थोड़ा सा बैकग्राउंड है, पता चल जाएगा। लेकिन आपका नहीं है तो फिर भी आप जब क्लास अटेंड करेंगे, काउंसलिंग सेशन का जो अटेंड करेंगे, उसमें सब कुछ डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। और यह अच्छा डिसीजन आपने बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पार्ट लिया है। आई वेलकम यू ऑल, और आप अच्छे से प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े। ये हमारा मेन मोटो है। हम चाहते हैं आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ आगे बढ़ के देश के लिए भी कुछ फायदा करें। तो अपना फायदा, आपका पर्सनल फायदा होगा तो देश के भी ऑटोमेटिक फायदा हो जाता है।
ये ध्यान में रखिए। और हमेशा अपना डिसिप्लिन प्रॉपर टाइम मेंटेन करके टाइम डिवोट करके आपको पढ़ना जरूरी है। आप कुछ लोग दूसरा नौकरी भी कर सकते हैं इसके साथ साथ, तो ये भी ध्यान में रखिए, उसका कॉम्प्रोमाइज ना करें जो आपका पढ़ाई में कम टाइम दे। नौकरी भी करिए लेकिन टाइम पढ़ाई में कम नहीं करना है, तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको अलग से। आपका दूसरा काम भी करना है तो ठीक है करिए, लेकिन पढ़ाई में आपको टाइम उसके वजह से ज़्यादा कम नहीं करना है। पढ़ाई में आपको गैप नहीं होना चाहिए, आपका मिनिमम पीरियड मैक्सिमम पीरियड जो भी है, लेकिन आप हमेशा ये कोशिश करिए आप मिनिमम पीरियड का जो प्रोग्राम है मिनिमम पीरियड में उसको कंप्लीट करिए, उसको प्रोलॉन्ग मत कीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें ध्यान में रखिए और टाइमली करेंगे तो आपको फ़ायदा अच्छे से होगा, अब जल्दी भी हो जाएगा और आप प्रोग्रेस भी, मतलब गैप नहीं होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होंगे। एक बार गैप हो गया तो फिर बाद में दोबारा फिर उसको समझना पड़ता है, फिर टाइम लग जाता है, तो ये इशू ध्यान में रखिए। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। I hope you will do well in your future endeavor. Thanks to all of you for listening, and over to Tushar ji. Thank you, sir, for addressing the learners. Now I request Dr. Arshia Hussain, Madam, Deputy Director, Madam, to address the learners. Good afternoon, everyone. इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के बिहाफ पे आप सब लोगों का स्वागत है इस इंडक्शन प्रोग्राम में। और जैसे हम लोगों को समझ में आता है कि बीसीए की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप सब लोग 12th पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीसीए इग्नू के बीसीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है। तो आप सब लोग सबसे पहले तो इग्नू के डिस्टेंस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आप अगर रेगुलर स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं तो यहाँ पे आपको ओडीएल सिस्टम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपको ही अटेंटिव रहना है, हर एक चीज़ की जानकारी लेना है। और एक तो ये आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, सब कुछ आपको पता नहीं चलेगा कब जल्दी शुरू होगा सेशन और जल्दी से आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, असाइनमेंट सबमिशन करने का टाइम आ जाएगा। इसलिए स्टडी सेंटर के रेगुलर टच में रहना है और अपनी पूरी एक्टिविटीज जैसे जैसे आई है गाइडलाइंस वैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में है। अगर कुछ भी आपका छूट जाता है तो वो आगे अगले सेमेस्टर आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर उसके साथ और कुछ छूट जाएगा तो वो और कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो ऐसे कर करके आपकी डिग्री जो है 3 ईयर ड्यूरेशन की है तो वो और इंक्रीज हो जाएगी, जबकि इग्नू ने मैक्सिमम और मिनिमम ड्यूरेशन दी हुई है, पर कोशिश करेंगे आप लोग कि आप अपना मिनिमम ड्यूरेशन जो 3 ईयर्स है उसमें टाइमली अपना ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें आप सबको अटेंटिव रहना है और सारी चीजें अपने टाइम शेड्यूल बना के उसके हिसाब से जो आपको स्टडी सेंटर से शेड्यूल मिला है उसको मैच करके पढ़ना है, क्योंकि स्टडी सेंटर में जो काउंसलिंग सेशंस होगा जिनके बारे में आपको बताया गया होगा क्लासेस, तो वो क्लासेस आपकी एक तरह से डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, उसमें लेक्चर्स नहीं होते। तो उसमें आपको पहले से जो आपको किताबें दी गई है या आपने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करी हुई है उससे आपको पढ़ना है, और जो आपको टफ चीज समझ में नहीं आ रही है आपको वो क्लास में लेके जाना है और वो समझना है। और जो प्रैक्टिकल सेशंस है उसमें आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो थ्योरी के लिए आपको पहले से पढ़ाई करके जाना है, अपने सवाल लेके जाने हैं, और काउंसलिंग सेशंस जो होगा उसमें आपको डिस्कस करना है अपने एकेडमिक काउंसलर के साथ। और जैसे मैं बता रही हूँ कि ओडीएल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें एज ए स्टूडेंट आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। और इसी के साथ साथ आप सबको आपका जब ईमेल आया होगा कंफर्मेशन का, तो उसके साथ काफी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें आपके री रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी है कि आपको अगला री रजिस्ट्रेशन करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, टर्म एंड एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम देना है, और प्रैक्टिकल अटेंडेंस कंपलसरी है, तो प्रैक्टिकल की अटेंडेंस मेंटेन करके रखना है ताकि आप एग्जाम में बैठ जाए। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया और प्रैक्टिकल की अटेंडेंस नहीं कंप्लीट करी है तो आपको एग्जाम देने को
नहीं एलिजिबल होगी आप। तो दोनों चीजें करनी पड़ेगी, पहले सेशंस भी अटेंड करने पड़ेंगे और एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा होगा और सेशंस कर लिए हैं, तो उनको भी प्रैक्टिकल में एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं होगी। तो ये सारी डिटेल्स आपकी प्रोग्राम गाइड में, प्रोस्पेक्टस में ये सब कुछ दिया हुआ है। जो लिंक आपको आया होगा एडमिशन के बाद कंफर्मेशन पे, उस लिंक में डिटेल होगी कि आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन क्रिएट करना है। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं वो स्टूडेंट पोर्टल दिखा भी देती हूँ अपना स्क्रीन शेयर करके। ये कुछ स्टूडेंट पोर्टल है जो इस तरह से आपका विजिबल होगा, जिसको मैंने सिंपल गूगल में जाके भी देखा है, और ये लिंक आपको कंफर्मेशन मेल में भी मिला होगा। तो आप सब इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना नया लॉगिन बनाएंगे, क्योंकि जो आपने एडमिशन लिया है वो लॉगिन डिफरेंट है और ये स्टूडेंट पोर्टल का लॉगिन डिफरेंट है। तो इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी डिटेल्स रजिस्टर करेंगे, प्रोग्राम और नेम, आई कार्ड का एनरोलमेंट नंबर, इस तरह से आप रजिस्टर करके यूजर आईडी पासवर्ड बना के फिर लॉगिन करेंगे। तो इसमें आपके स्टूडेंट डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन आएगी। सर्विसेज सेक्शन में जाके आप अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और वो आई कार्ड आपको अपने साथ रखना है, कैरी करना है। जब आप स्टडी सेंटर पे जाएंगे तब क्लास करने के टाइम पे, या फिर आपके जो एग्जाम होगा उस टाइम पे भी आपको वो आई कार्ड अपने पास रखना है। और उसी के साथ साथ उस पे 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होगा, जो आपको ईमेल में भी मिला है, जिसके आगे एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। तो वो 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर आपको हर रेफरेंस में, जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो वहां पे भी देना होता है, एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो वहां पे भी देना है, और इसमें स्टूडेंट लॉगिन में भी आपके वो डिस्प्ले होता है। और इसी के साथ ये भी बता दूं कि इसमें आपने अगर कोई जानकारी भरी है, स्टूडेंट पोर्टल आप जब खोल के देखेंगे, या एक और है जहाँ पे इग्नू एडमिशन स्टेटस डाल के हम लोग देखते हैं, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एडमिशन डिटेल है उसमें कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही है जो आपने नहीं भरी है। तो इसमें हम लोग इग्नू एडमिशन स्टेटस है, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और ये इंटर करेंगे आप, तो आपकी डिटेल्स आने लगेगी। उस डिटेल्स में आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, जो मास्क होता है, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब दिया होगा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो यहाँ से क्लियर होगा जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो, और एक जब इसमें आप इंटर करेंगे तो अपनी डिटेल्स चेक कर लेंगे कि सारी चीजें ठीक आ रही है कि नहीं। अगर किसी में भी मिस्टेक है तो इनिशियल लेवल पे रीजनल सेंटर जो आपका दिल्ली 1 है उसको ईमेल करके अपनी वो गड़बड़ियां आप ठीक करा सकते हैं। उसी के साथ साथ ये मैंने इग्नू की वेबसाइट खोल रखी है। आप सब में ज्यादातर लोग इस वेबसाइट के बारे में जानते हैं, इसी पे जाके अपने एडमिशन फॉर्म भरा है। पर इसमें स्टूडेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट जोन है वो एक अनाउंसमेंट सेक्शन है, जिसमें अनाउंसमेंट्स आपकी करंट इंफॉर्मेशन जो आती है, जैसे रिवाइज टेंटेटिव डेट शीट है, या आपके टर्म एंड एग्जाम फॉर्म की जो डेट बढ़ी हुई है, या इसी तरह से जो एक्सटेंशन असाइनमेंट सबमिशन का आपको मिला है, वो सारी डिटेल यहाँ पे दी है। और यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज के सेक्शन में ये डायरेक्ट लिंक है कॉमन प्रोस्पेक्टस का। उसी तरह से यहाँ पे स्टडी मटेरियल का स्टेटस, जिन लोगों ने हार्ड कॉपी में ऑप्ट किया है तो वो यहाँ जाके देख सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस मैं बोल रही थी वो यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से आप इस पे जा सकते हैं। इसी जैसे ये स्टडी मटेरियल स्टेटस है, तो आप लोग जुलाई 25 सेशन के स्टूडेंट है, ये आपको याद रखना है कि आपका जुलाई 25 सेशन में एडमिशन हुआ है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, तो अगर डिस्पैच हुआ है स्टेटस तो आपको स्पीड पोस्ट नंबर यहाँ पे आने लगेगा। उससे आप अपनी डिटेल्स ट्रैक कर सकते हैं कि आपको मटेरियल कहाँ तक पहुँचा है। उसी के साथ जो आपकी स्टूडेंट सर्विसेज का सेक्शन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके डिटेल्स है, स्वयं प्रभा चैनल से रिकॉर्डेड सेशन के, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के बारे में है। उसी तरह से लाइब्रेरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ये सब इंफॉर्मेशन इस टैब को आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करें कि आप जो कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप ये सारे ये चीज़ें खुद ब खुद एक्सप्लोर करके पूरी वेबसाइट को आप देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
उसी तरह से इग्नू का एक ई ज्ञान कोश पेज है, वो भी आपको लिंक में भी मिला है, तो उसमें भी आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल वगैरह जो है आपके, वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आप ये याद रखें कि आपको री रजिस्ट्रेशन भी कराना है, जो अगले सेशन का यानी जनवरी 26 सेशन का शुरू जब होगा, तो उस टाइम पे आप एग्जाम में अपियर नहीं हुए रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अगले सेशन में इग्नू का ये प्रोसेस है कि आपको आरआर कराना है। नहीं तो आपका जब तक वो सारा प्रोसेस होगा कंप्लीट, तो आपका अगला सेशन आ जाता है। इसीलिए एडमिशन लेने के बाद फिर अगले क्लास करिए, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर एग्जाम फॉर्म वाला जो ऑप्शन आएगा वो सारा एग्जाम फॉर्म भरेंगे आप, फिर उसके बाद एग्जाम में अपियर करेंगे। तो ये सारा टाइम लाइन जो है आप बना के अपने पास रख ले, और इसी तरह से सारी चीजों को फॉलो करते रहेंगे, तो होपफुली आप ये प्रोग्राम टाइमली और अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और क्लास जो है जो आपकी लगाई गई है फेस टू फेस मोड में, तो उन क्लासेस को आप जरूर अटेंड करें और अपने सवाल लेके जाए काउंसलिंग सेशन में। और ये तब होगा जब आप घर से पढ़ाई करके जाएंगे, तो आप अपना टाइम डिवोट करें और अटेंटिव लर्नर बन के मेरी बेस्ट विशेस है कि आप ये प्रोग्राम ठीक से कंप्लीट करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। Thank you, madam, for addressing the learners. Now I request our principal, madam, Ms. Minadatta, madam, to. Can I say Yes, a word? yes, sir, yes, sir. Look, because I think some people have raised the hand and all that. I would suggest कि 13 को आप लोग यहाँ आइए, आपके Right, sir. सारे जो 11 बजे आ जाइए, सो दैट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सो दैट आपको कोई शक नहीं रहेगा कि आपने कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रैक्टिकल करने हैं। यू विल डू एवरीथिंग। तो आप लोग 11 बजे सब लोग आ जाइए। ओके, दैट्स फाइन। Okay, sir. Thank you, sir. Now I request our principal, madam, Ms. Minadatta, madam, for giving vote of thanks. Yeah, thank you, Tushar. Over to madam. Yes, ma'am. I'm audible? Yes, madam. Yeah, I'll start with the inspirational quote that is, education is a simple, the soul of a society as it passes from one generation to another. A warm good afternoon to all our learners and all my IGNOU faculties, my colleagues, and sir, madam, and my director, sir, and everyone. I myself is Meena Datta, principal of Merit, and I'm a senior counselor as well as in Merit. It is my pleasure to propose to customary vote thanks to Dr. Maqbool Ali Lux, Regional Director of IGNOU RC1, and Dr. Rahman sir he's an Assistant Regional Director in IGNOU RC1, and Dr. Asiya Ma'am Hussain is an Assistant Regional Director IGNOU RC1, and Dr. Ratan Datta is a Merit, he's a director, and my colleagues and IGNOU family and my dear learners. I would like to assure the learners that will never regret for having a chosen Merit as their study center. I'll talk about, I'll say thank you to IGNOU. IGNOU has an excellent team work environment from top to bottom. They are working beyond their office hours. And we salute to the accounts department for their cooperation time to time and understanding to Merit and our faculty also. Thank you once again, Director Maqbool Ali Lux sir, for your generosity and for being such a supportive leader in IGNOU Regional Center 1. This is for our students, and we can say learner also. It's a best quote for them. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. And you have listened to Tushar sir, our director sir, Rahman sir, Arsia sir, and all. So I think all students, you just respect to the teachers, because Guru is the pillar of our life. And respect your teachers with positive attitudes. If you take interest in class, you will learn more and willingness to learn.
and update yourself. Keep checking website ignoac.in and Merit website merit.ac.in and email. I think Tushar sir has already told you that igno07162@rediffmail.com. And I extend my heartful respect and gratitude to our Director Sir of Merit, Dr. Ratan Kumar Datta, for his leadership and invaluable guidance. May his wisdom continue to illuminate our path and inspire us to achieve great heights. I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed Merit junior and senior faculties members. The faculties are highly respected and renowned in their respective field of expertise. Mr. Tushar sir, Mr. Rahim sir, Mr. Abhishek sir, Mr. Santosh sir, Meenakshi Thakur madam, Meenakshi Sharma madam, Mr. Devloy, he's a gold medalist of IGNO. We feel proud he's working with us. Mr. John, Mr. Rohan, and other my staff members. Once again, thank you to all IGNO faculty for your dedication and hard work is guiding and educating to our students. My best wishes to all BCA first year student, for first semester student, for various stream, for their continued success and growth. For any subject related concern, please free to visit to our Merit Center. It's your center. Now, once you join Merit and you are connected with IGNO, now you are our family. And please visit to our center. If you have any problem, please welcome. We are all Monday to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. We are open. You come anytime, even if you come from especially maths, which I see that we will give you the special class for maths also. Any subject, you are welcome. We will guide you. We will counseling you. And please, after first semester, I have noticed there are a lot of students, वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं. बच्चे, आप लोग को छोड़ना नहीं है. अगर आप लोग को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे पास आइए. और कुछ भी चीज का प्रॉब्लम हो, यू जस्ट कम टू मेरिट. ये आपका सेंटर है 07162. आप आरसी नहीं जाएंगे डायरेक्ट, आप हमारे पास आएंगे. हमारे पास पूरी प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है, देन यू विल गो टू द आरसी, राइट? एंड I will say, always believe in yourself. And we all see you on 13th. If you have any problem, any doubts, please welcome. आप 13th को आइए. हम सब टीचर्स भी होंगे यहाँ पे, हमारे सारे फैकल्टीज भी होंगे. They are all IGNO faculties. And best of luck. I think अभी 2004 student रह गए हैं. When I started, I think 200 something students थे. So all the best. Best of luck and God bless you. Thank you, Tushar. You have given me this opportunity. Thank you, madam. Thank you so much. God bless you. Okay.